गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के सामने जो आपका डीपीएस में यूनिट टेस्ट हुआ था उसके सॉल्यूशन की बात करने जा रहा हूं। मैं वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और आप लोग चेक करिए कि आप लोगों ने कहां पे मिस्टेक किया है। राइट, नो डाउट कुछ लोगों ने बहुत अच्छा आंसर राइटिंग किया है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत भी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल टू mod of x डिवाइडेड बाई x when x does not equal to 0 and 1 when x is 0. Firstly you have to write the question, okay, in this form. Then for continuity at x equal to 0 we should have limit x tending to 0 f of x is equal to f of 0. Right, now this is a mod function, then we will find LHL and RHL. So for LHL, limit x tending to 0 minus f of x, that is limit x tending to 0 minus, when we will talk about 0 minus, then mod x will be minus x and divided by x. x cancel हुआ, that is minus 1. LHL की वैल्यू इज -1. राइट, नाउ RHL लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x. ओके, नाउ लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, when we will talk about 0 plus, then mod x will be x and divided by x, and this is cancelled, we got 1. x कैंसिल हुआ, 1 आ गया. राइट, सो वी कैन सी हेयर LHL डज नॉट इक्वल टू RHL. ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, बट दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर. ओके, देन गिवन फंक्शन इज f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस at x is equal to 0. Right, this is the proper solution of the first question. Now I will talk about second question. The second question is show that f(x) is equal to x square is differentiable at x equal to 1 and find f dash 1. Right, so we have function f(x) is equal to x square. We have to check the differentiability of this function at x equal to 1. Okay, not ये given नहीं है कि ये differentiable है. We have to check and we have to prove that it is a differentiable function. Then we will find LHT and RHT, that is left hand derivative and right hand derivative. Okay, now for LH at x equal to 1, right, for LHD we have limit h tending to 0 f of 1 minus h minus f of 1 divided by minus h. Okay, this is the concept. Now limit h tending to 0 f of -1 minus h, we will find from here 1 minus h का होल स्क्वायर minus f of 1, that is 1 divided by minus h. फर्दर सॉल्व करते हैं इसी को हम लोग, इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, होल स्क्वायर ओपन करेंगे 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h and this is -1 and divided by minus h. Right, now limit h tending to 0, this one is cancelled by this one and we get common h minus 2 divided by minus h. This h is cancelled by this h. Okay, and we will apply the limit and we get plus का 2. Okay, now for RHD limit h tending to 0 f of 1 plus h minus f of 1 divided by h,
This is the concept for RHD, right? Now limit h tending to 0, f of 1 plus h we can get from here, that is 1 plus h का whole square minus 1, that is f of 1 and divided by h, right? Again we will apply the same procedure. Limit h tending to 0, 1 plus h square plus 2h and minus 1 divided by h. This one is cancelled by this one, and from here we can get common h. Limit h tending to 0, h plus 2 divided by h, right? This h is cancelled by this h and we will apply the limit. We can get 2. Okay, so we can see here that LHD is equal to RHD. Okay, from here we can get LHD is equal to RHD, and that is equal to 2. Okay, LHD and RHD both are exist and both are equal to 2. Then we can say the function fx is equal to x square is differentiable at x equal to 1, right? Now ये हमने प्रूव कर दिया कि ये डिफरेंशिएबल है. अब हमको डिफरेंशिएशन निकालना है एट एक्स इक्वल टू 1 पे. सो हम लोग अब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं इसका. एफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर है तो एफ डैश एक्स क्या आता था 2x, ये डिफरेंशिएशन हुआ एफ डैश एक्स. अब एट एक्स इक्वल टू 1 पे करना है तो वी विल पुट एक्स इक्वल टू 1, पुट करेंगे एक्स इक्वल टू 1, देन एफ डैश 1 इज 2 into 1 that is 2, राइट. डायरेक्टली वहां से कर सकते थे या यहां से भी कर दिया. LHD इक्वल टू RHD मतलब डिफरेंशिएबल है और डिफरेंशिएशन की वैल्यू 2 आई है, राइट. दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2. आई होप सबको समझ में आया होगा. Now I will discuss the question number 3, that is if y equal to sine 3x plus 5, then find the value of dy by dx, that is differentiation with respect to x. Okay, so we will differentiate directly. dy by dx is equal to d by dx of sine of 3x plus 5, right. साइन का होता है cos, तो हो गया cos 3x plus 5. नाउ अगेन वी विल डिफरेंशिएट दिस टर्म d by dx of 3x plus 5 and we get 3 from there, that is 3 cos 3x plus 5, right. This is the solution of question number 3. Now I will discuss question number 4, that is find dy by dx if y is equal to. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, if y is equal to e power x log of sin 2x, then find the value of dy by dx, right. Then we will differentiate directly dy by dx. We will use in this chain rule. Okay, that is first function into derivative of second function plus second function into derivative of first function. Okay, now e power x as it is रहेगा. डिफरेंशिएशन ऑफ log sin 2x, log फंक्शन का 1 अपॉन हो जाता है, दैट इज 1 अपॉन sin 2x, एंड हम लोग इस sin 2x का अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे. ओके, एंड प्लस log sin 2x एज इट इज रहेगा. e पावर x का e पावर x ही होता है, तो e पावर x इंटू लॉग ऑफ sin 2x एज इट इज लिख दिया हमने. नाउ
ई पावर एक्स, साइन 2x का हो जाता है कॉस 2x, और 2x का फिर से करेंगे तो 2 और आ जाएगा, प्लस ई पावर एक्स लॉग ऑफ साइन 2x, राइट। कॉस 2x अपॉन साइन 2x, कॉट 2x, तो और ई पावर हमने कॉमन ले लिया, ई पावर एक्स कॉमन ले लिया, 2 कॉट 2x प्लस लॉग ऑफ साइन 2x। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नाउ अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कह रहा है शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस कॉस एक्स व्हेन एक्स इज डज नॉट इक्वल टू 0 एंड 2 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। ओके, x इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन की हमें कंटिन्यूटी प्रूव करनी है। कंटिन्यूटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिमिट की वैल्यू फॉर कंटिन्यूटी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स शुड बी एफ ऑफ 0, राइट। दिस इज द कॉन्सेप्ट। नाउ हम लोग लिमिट फाइंड आउट करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x डिवाइडेड बाई x प्लस कॉस x। ओके, एल्जेब्रा ऑफ लिमिट मैंने बताया था, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 0 कॉस x। ओके, साइन x अपॉन x लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे 1 देता है, और ये हो जाएगा कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू भी क्या आती है, 1 आती है। 1 प्लस 1 दैट इज 2, एंड वी हैव ऑल्सो f of 0 is equal to 2. So we can see here that is limit x tending to 0 fx is equal to f of 0। ये आ गया अपना, और ये किसके इक्वल टू आया, 2 के। So we can say that the given function is continuous at x equal to 0, right? नाउ अब हम लोग सेक्शन 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है शो दैट द फंक्शन, ये कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन 1 बाई एक्स व्हेन एक्स इज डज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। ओके, इसकी कंटिन्यूटी प्रूव करनी है हमें एट एक्स इक्वल टू 0। सो हम लोग फिर अगेन वही करेंगे, लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आनी चाहिए। फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ 0, राइट। सो वी विल फाइंड द लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स इंटू साइन 1 अपॉन एक्स। ओके, एंड दिस विल गिव 0 into sine of 1 upon 0, that is 0 into number between -1 to 1। साइन थीटा की रेंज क्या होती है, -1 से 1 के बीच फॉर रियल नंबर। ओके, साइन थीटा का डोमेन रियल नंबर होता है, और हर रियल नंबर के लिए -1 से 1 का क्या होता है, इसका रेंज। तो ये जो पूरी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होने वाली है, दैट इज रियल नंबर। एंड रियल नंबर इंटू 0 क्या होता है, 0 आता है। ओके, सो वी कैन सी हेयर लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, और ये किसकी इक्वल आ गई, 0 के। सो द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, राइट। एंड द नेक्स्ट वन इज
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसी में, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब की बार यहाँ गिवन है, क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x, और इसको प्रूव करना है इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, राइट। फॉर डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग क्या चेक करते थे, एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी आना चाहिए, राइट। तब जाके हमारा क्या होता है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी होती है। तो हम लोग एल एच डी चेक करते हैं। एल एच डी का फॉर्मूला क्या होता था, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, आई हो कि फार्मूला सबको याद होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई माइनस एच, राइट। एंड फ्रॉम हियर लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, 0 माइनस एच का होल स्क्वायर साइन ऑफ 1/0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 गिवन है, डिवाइडेड बाई माइनस एच, राइट। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 0 माइनस एच का होल स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर ही आ जाएगा, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, एक माइनस इधर आ गया, साइन ऑफ 1/h डिवाइडेड बाई एच। इस एच से एक एच कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू देखिए क्या निकल के आई, माइनस ऑफ लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच इंटू साइन 1/h। देखिए ये सेम प्रीवियस क्वेश्चन हो गया जो इससे पहले वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, और इसकी वैल्यू क्या आई थी, 0 आई थी। ये पूरा देखिए, ये पूरा पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक इसके पहले वाला क्वेश्चन नहीं हो गया, बस वहाँ पे x था और यहाँ पे x था, तो इसकी वैल्यू क्या आई थी, 0 आई थी, राइट। सिमिलरली हम लोग आर एच डी फाइंड आउट करेंगे। आर एच डी जब फाइंड आउट करेंगे, आर एच डी का जो फॉर्मूला होता है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई एच, राइट। और इसकी जो वैल्यू आएगी लिमिट एच टेंडिंग टू 0, देखिए अब 0 प्लस एच का होल स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर ही आ जाएगा, साइन ऑफ 1/0 प्लस एच करेंगे तो 1/h ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एच। ये मल्टीप्लाई का साइन है, ध्यान रहे, एक एच से एक एच कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे जो वैल्यू आई लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच इंटू साइन ऑफ 1/h। देखिए सेम इसी के तरीके बन गया ये पूरा पार्ट। प्रीवियस क्वेश्चन जो था इसकी वैल्यू क्या आई थी, 0 आई थी, ओके। सो वी कैन सी दैट एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी एंड इज इक्वल टू 0, ओके। सो वी कैन से द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, राइट। ये प्रॉपर आंसर राइटिंग का प्रोसीजर होने वाला था। जिन्होंने कुछ मिस्टेक किया है वो जरूर चेक कर लें, उन्होंने कहाँ गलतियाँ की हैं। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज फाइंड वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 2 और नॉट। कह रहा है चेक करिए कि क्या x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पे गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, राइट। और फंक्शन क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स 2 माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, एंड लिमिट गिवन है, ये जब वैन x इज लेस देन और इक्वल टू 1 और ये जब है ग्रेटर देन 1 बट लेस देन और इक्वल टू 2, एंड ये है x इज ग्रेटर देन 2। देखिए दो जगह पे लिमिट ब्रेक हो रही है, एक बार x इक्वल टू 1 पे, एक बार x इक्वल टू 2 पे, और 1 और 2 पे ही हमको चेक भी करना है फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी, राइट। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना होता है हमको, LHD और RHD फाइंड आउट करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग एट x इक्वल टू 1 पे फाइंड आउट करेंगे, राइट। एट x इक्वल टू 1 के लिए LHD क्या होने वाला है हमारा, LHD विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई माइनस h, राइट। नाउ f ऑफ 1 माइनस h हम लोग इसमें फाइंड आउट करेंगे, लेस देन और इक्वल टू 1 यहाँ पे लगा हुआ है ना, देखिए x इज लेस देन और इक्वल टू 1,
So f of 1 minus h, that will be 1 minus h. And f of 1 इक्वल टू का साइन इसमें लगा है, f of 1 भी इसी में चेक करेंगे, x इक्वल टू 1 रखा तो हमने क्या आ गया, ये 1 आ गया सॉरी. नाउ डिवाइडेड बाई माइनस h. ओके, ऑब्वियसली यहाँ पे लिमिट चल रहा है. ओके, नाउ दिस वन इज कैंसिल्ड बाई दिस वन and we have minus h divided by minus h, cancelled out, we will get 1. Okay, now RHD is limit h tending to 0 f of 1 plus h minus f of 1 divided by positive h, right, and that is limit h tending to 0 f of 1 plus h. देखिए x ग्रेटर देन 1 किस में है, इस वाले फंक्शन में है, दैट इज इसमें. f ऑफ 1 प्लस एच जब निकालेंगे तो ये 2 एज इट इज रहेगा, माइनस x की जगह रखेंगे 1 प्लस एच, और f ऑफ 1 क्या आया था, वो तो माइनस 1 ही रहने वाला है, x इक्वल टू 1 तो 1 रहने वाला है, डिवाइडेड बाई h. अब देखिए ये 2 है, ये माइनस 1 हो जाएगा, और एक माइनस 1 ये और है, 2 और माइनस 2 क्या हो गया, 0, और ये माइनस h डिवाइडेड बाई प्लस का h, दैट इज माइनस 1. कहीं मिस्टेक तो नहीं. देखिए ये 2 है, ये अंदर माइनस जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा, और एक माइनस 1 ये है, माइनस 1 माइनस 2, और ये प्लस 2 कैंसिल हो गया, और ये माइनस h डिवाइडेड बाई h, दैट इज माइनस 1. ओके, सो फ्रॉम हियर LHD इज नॉट इक्वल टू RHD. देयरफॉर एट x equal to 1 given function is not differentiable. Given function is not differentiable. Right? Now we will check at x equal to 2. At x equal to 2. LHD क्या हो जाएगा? Limit h tending to 0 f of 2 minus h minus f of 2 divided by minus h, right? f of 2 minus h, देखिए x लेस देन और इक्वल टू इसमें है, 2 माइनस एच इसमें निकलेगा, तो 2 माइनस एक्स की हमने पुट किया 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 किस में आएगा, इक्वल टू का साइन इसी में लगा है, तो यहाँ पे रखा तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 0 डिवाइडेड बाई माइनस एच. ओके, ये माइनस अंदर गया, माइनस 2 हुआ, माइनस से माइनस 2 कैंसिल आउट हुआ, ये पॉजिटिव h डिवाइडेड बाई नेगेटिव h, दैट इज माइनस 1. ओके, माइनस 1 आ गया LHD. और RHD फाइंड आउट करते हैं हम लोग. RHD इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 डिवाइडेड बाई h, राइट. लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, x इज ग्रेटर देन 2 इसमें है, तो f ऑफ 2 प्लस h रखिए, माइनस 2 तो एज इट इज रहेगा, प्लस 3 x की जगह क्या रखेंगे 2 प्लस h, माइनस एक्स स्क्वायर है, दैट इज माइनस 2 प्लस h का होल स्क्वायर, माइनस f ऑफ 2 क्या आया था, 0 आया था, 2 माइनस 2 0 आया था, डिवाइडेड बाई h, राइट. नाउ इसको सॉल्व करते हैं हम लोग. -2 + 6 + 3h -4 -h² and -4h and divided by h, राइट. दिख रहा है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं यहाँ पे. देखिए ये -2 ये -4 -6 हुआ, ये +6 कैंसिल आउट हो गए, ये 3h -4h -h बचा, तो ऊपर क्या बचा है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 -h² -h एंड डिवाइडेड बाई h, ऐसा बचा है, -h² और ये 3h -4h दैट इज -h डिवाइडेड बाई h. h कॉमन लेके मैंने कैंसिल आउट किया, ये बचा लिमिट
h टेंडिंग टू 0 माइनस h माइनस 1, राइट। हाँ, अब h हमने लिमिट 0 प्रोवाइड करा दिया, ये वैल्यू आई -1। ओके, देखिए एट x इक्वल टू 2 पे LHD -1 आया था, RHD भी -1 आया। सो एट x इक्वल टू 2 LHD इज इक्वल टू RHD, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। सो हमारा जो कंक्लूजन होगा क्या होगा, द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 बट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इफ y इक्वल टू log ऑफ स्क्वायर रूट 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x, देन प्रूव दैट dy बाई dx इक्वल टू sec 2x। इस क्वेश्चन में कुछ लोगों ने क्या किया था, एक दो लाइन इधर उधर किया, इसके बाद डायरेक्ट ये रिजल्ट लिख दिया। ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा, प्रॉपर आप कैलकुलेशन करिए और स्टेप मार्किंग आपके बोर्ड एग्जाम में होती है, राइट। नाउ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस इज 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x। क्वेश्चन सही लिखा है। हाँ, ये स्क्वायर रूट का हमने पावर 1/2 ले लिया। हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं, दैट इज log x पावर n इज n ऑफ log x, राइट। ये जो पावर होता है वो इधर चला आता है, तो यहाँ पे पावर हाफ है, तो ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ log 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x। इस क्वेश्चन को बहुत लोगों ने गलत किया था, इसको देखिए। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई dx, राइट। ओके, नाउ log x का जो होता है वो 1/x हो जाता है, दैट इज 1/1 प्लस tan x 1 माइनस tan x, एंड इसका हम फिर से करेंगे dy बाई dx ऑफ 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। बहुत इजी था, बस स्टेप बाय स्टेप आपको बस फॉलो करना था। क्वेश्चन पेपर बहुत इजी था। 1/2 ये ऊपर चला गया, 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x। नाउ अब इसका सॉल्व करते हैं हम लोग क्वोशिएंट रूल यूज करके, दैट इज सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। 1 का हो जाएगा 0, tan x का होता है sec स्क्वायर x। मैं डायरेक्ट थोड़ा कर रहा हूँ। ओके, सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज sec स्क्वायर x माइनस फर्स्ट फंक्शन दैट इज 1 प्लस tan x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। 1 का करेंगे 0 हो जाएगा, tan का करेंगे sec स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस ऑफ sec स्क्वायर x एंड डिवाइडेड बाई सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर दैट इज 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, राइट। नाउ मल्टीप्लाई कराते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा sec स्क्वायर x हो गया, और फिर इसका जब मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे sec स्क्वायर माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2 sec स्क्वायर x, राइट। फिर जब इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो माइनस tan x sec स्क्वायर x, और जब इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे देखिए माइनस tan x sec स्क्वायर x, और ये वाला माइनस प्लस कर देगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कर पा रहे हैं आप लोग। इसका जब इसमें कराएंगे तो माइनस tan x sec स्क्वायर x, इसका जब इसमें कराएंगे तो माइनस tan sec स्क्वायर x, और ये माइनस वाला प्लस कर देगा, प्लस माइनस 1 कैंसिल आउट, डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x होल स्क्वायर।
ये 1 माइनस टेन एक्स, ये 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा जो रिमेनिंग पार्ट में यहाँ भी लिख रहा हूँ, दैट इज 1/2 और ऊपर क्या बचा, देखिए 2 से 2 भी यहीं पे कैंसिल आउट कर दिए, ये 2 ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचा सेक स्क्वायर एक्स डायरेक्टली, सेक स्क्वायर एक्स एंड डिवाइड में क्या बचा है 1 प्लस टेन एक्स 1 माइनस टेन एक्स, ये हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, राइट, 1 प्लस टेन एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, दैट इज नाउ दिस विल बी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स एंड दिस विल बी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये बचा 1 अपॉन कॉस 2x कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड ये हो गया सेक 2x, यही हमको प्रूव करना था, दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक 2x, यही प्रूव करना था, राइट। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आर द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2, मीन्स आर की किस वैल्यू के लिए गिवन फंक्शन एक्स इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है, राइट। सो एफ एक्स क्या गिवन है 2x प्लस 1 आर एंड 3x माइनस 1, ये है व्हेन x इज लेस देन 2, ये है व्हेन x इक्वल टू 2 एंड ये है जब x ग्रेटर देन 2, राइट। कह रहा x इक्वल टू 2 फंक्शन कंटिन्यूअस है तो r की वैल्यू बताइए। सो फॉर कंटिन्यूटी LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 2, राइट, दैट इज r। सो LHL फाइंड आउट करते हैं हम लोग, दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू 2 एंड LHL के लिए फंक्शन ये वाला गिवन है, दैट इज 2x प्लस 1, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कराएंगे 5 आ गया, सिमिलरली RHL की वैल्यू निकालेंगे या फिर यहीं से डायरेक्ट हम लोग f ऑफ 2 की कर दें, क्योंकि अगर 3 इक्वेशन आपस में इक्वल हैं, किसी दो को आपस में इक्वल करके हम लोग सॉल्व करते थे, राइट, या तो इसको इसके इक्वल या फिर इसके इक्वल करते थे, ओके। तो यहीं से r की वैल्यू 5 आ गई, और अगर चाहते हैं तो आप RHL भी निकाल लीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू 2, अब की बार फंक्शन होगा 3x माइनस 1, दैट इज 6 माइनस 1 5, ओके। सो फ्रॉम हियर LHL is equal to RHL is equal to 5 and this will be equal to R, okay। so R की वैल्यू 5 आ गई, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन A and B, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन A and B so that the function is defined this is continuous at x equal to 3, कह रहा है फंक्शन गिवन है वो x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस है, तो A और B में रिलेशन फाइंड आउट करिए। फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 बी एक्स प्लस 3 when x is less than or equal to 3 when x is greater than 3। ये फंक्शन x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस है, तो a और b में रिलेशन फाइंड आउट करना है। कंटिन्यूटी के लिए क्या होता है LHL इज इक्वल टू RHL, सॉरी, राइट एवरीवन। सो LHL इज लिमिट x टेंडिंग टू 3 ax प्लस 1 एंड RHL इज लिमिट x टेंडिंग टू 3 ये वाला फंक्शन दैट इज बी एक्स प्लस, सॉरी, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कराते हैं, ये हो गया 3a ये प्लस 1, ये हो गया 3b प्लस 3, b को इधर ले आइए 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 3 और ये उधर गया -1,
3 कॉमन ले लिया, a माइनस बी इज इक्वल टू 2, सो a माइनस बी इज इक्वल टू 2/3. दिस इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b if function is continuous, right? Next one is find the values of a and b if the function is differentiable at x equal to 1. फंक्शन क्या गिवन है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a, राइट, एंड bx प्लस 2. Find the values of a and b if the function is differentiable at x equal to 1. कह रहा है ये गिवन फंक्शन जो है x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b. जब भी कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल गिवन है, इट मीन्स उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, राइट? तो एक बार तो हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देंगे, दैट इज LHD इक्वल टू RHD कर देंगे. डिफरेंशिएबल है, इट मीन्स LHD इक्वल टू RHD है, और इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, दैट इज LHD के लिए फंक्शन ये है, और इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे d/dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a, और ये इक्वल टू हो जाएगा RHD वाले फंक्शन, दैट इज d/dx ऑफ bx प्लस 2, राइट? इसका डिफरेंशिएशन किया हो गया 2x प्लस 3, और ये हो गया b, ओके? और एट x इक्वल टू 1 है, तो एट x इक्वल टू 1 ये हो गया 2 × 1 5 हो गया, ये b की वैल्यू आ गई 5 डायरेक्टली. x इक्वल टू 1 पुट किया हमने, राइट? जब भी कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल गिवन होगा, हम लोग उसको LHD इक्वल टू RHD करेंगे और डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, ओके? नाउ अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, देन इट मस्ट बी कंटिन्यूअस, राइट? सो ऑल्सो LHL शुड बी इक्वल टू RHL, दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, दैट इज LHL वाली वैल्यू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a इज इक्वल टू RHL वाली वैल्यू, दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस bx प्लस 2, राइट? यहाँ से देखिए डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करिए, 1 3 4, तो यहाँ से वैल्यू आ गई a प्लस 4. देखिए x इक्वल टू 1 रखा ना हमने लिमिट, 1 और ये 3 4 और ये a प्लस 4 हो गया, इक्वल टू इधर कितना आया b प्लस 2, b प्लस 2. b की वैल्यू 5 फाइंड आउट की हमने, और 4 को उधर ले जाते हैं, a की वैल्यू क्या आ गई, ये 5, ये प्लस 2 और ये माइनस गया 4 उधर, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3, ओके? सो द वैल्यूज ऑफ a एंड b आर 3 एंड 5, राइट? इतनी कैलकुलेशन थी. एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 13, ये थोड़ा 2 पार्ट में, इसको हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है? तो यहाँ तक सॉल्यूशन किसी को ना समझ में आया हो, इजी पेपर था ना, आई होप सबको समझ में आ गया, और जिन्होंने कुछ मिस्टेक किया था वो सीख सकते हैं इससे, ओके? थैंक यू क्लास.